Hello to all my beautiful TTC mamas and daddies for that matter. My name is Aditi and we share everything regarding fertility, babies, all the issues that we have during trying to conceive, lifestyle on this channel. First things first, I would like to wish you all a very happy new year. I really wish and pray that this year brings the most beautiful things in your life. I'm sending baby dust along your way. Coming to the topic of this video today, हमने ये channel start किया था with topic pregnancy that I was going through in 2020, and the first place that I went to was YouTube to look for what is ectopic and what all should I expect, what happens in it, everything. And I was so desperate, I was so mental during that period. So the first video that I posted, like I shared on this channel, was regarding ectopic pregnancy that I was going through at that time, and I received so much love over the years from you guys because I know this information is so helpful क्योंकि मैं same जगह रह चुकी हूँ. I have researched so much regarding this on YouTube with the help of my fellow YouTubers. I got to know so much over the years. You guys have shown me so much love and appreciation and questions, starting from ectopic to जो भी topics हमने cover किए हैं इस channel पे. So today I thought of why not to answer all the questions. If you have clicked on this video, there's a very high probability that maybe you are going through an ectopic pregnancy, and my heart goes out to you. And all I would like to tell you is don't worry, it will be fine. Just relax, keep your brain calm, and that is the most important thing at this point. Don't overthink it. Just relax and leave everything on the doctors. They know the best. I know कोई भी इस इमोशनल ट्रॉमा को ओवरकम नहीं कर सकता. I mean, when we are trying to conceive for so long, and we are so much engrossed into trying to conceive, and then we think that, oh my god, finally it's happened, and we start telling our family members and all, and then it turns out to be an ectopic. I mean, the trauma of that is मतलब वो तो कोई उसका comparison ही नहीं है. It's just really sad, very sad. But when I was going through it, like when मतलब बहुत, it was a shock. More than trauma, it's a shock. And when I was going through it, and when I got to know that okay, this is not normal, this is ectopic, I was so pissed. मुझे goosebumps आ रहे हैं, पता है. It's clear all the doubts that I have received over the years regarding ectopic pregnancy on my channel. So today that's what we are going to do. I mean, I was just like ठीक है यार, मतलब if it's to happen, it will happen, I just got over it. I was like, okay, this was not meant to be, get over it. Now let's just go on with the procedure of it. That's it. But if you start getting deep into it, it's extremely emotional experience, and my heart really goes out to you all. And let me tell you that it will all be okay. So don't worry, relax, and just keep yourself calm. That is the most important thing at this time. So starting with the questions and doubts. First things first, let's do a bit of a background on ectopic pregnancy. Ectopic pregnancy basically होता क्या है? So ectopic is implantation of embryo at the wrong place. जब egg fertilize हुआ है, उसके बाद it travels through the fallopian tube and then goes into the uterus and it implants itself there. ठीक है, generally that is the process. And वो जो traveling time है fallopian tube में, that is for 12 days. That is why for 12 days our fertilized egg is inside the tube, and by 14th day it implants. इसलिए डॉक्टर्स बोलते हैं हमेशा कि कभी भी आप जो अपना होम प्रेगनेंसी टेस्ट करो या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करो, उसको 14th डे पे या उसके बाद ही करो, क्योंकि 12 डेज तो आपका एग ट्रैवल कर रहा है, 14th डे तक वो जाके इम्प्लांट होता है, एंड उसके बाद बॉडी में HCG रिलीज होना शुरू होता है. नॉर्मल प्रेगनेंसीज में तो क्या होता है, एग फर्टिलाइज हुआ, ट्यूब के थ्रू 12 डेज में गया और 14 डे तक वो इम्प्लांट हो गया. बट एक्टोपिक में वो बीच में ही कहीं इम्प्लांट हो जाता है. अब उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, ऐसा क्यों होता है? सो एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हैपन ड्यू टू वेरियस रीजंस. नाउ इफ वी थिंक अबाउट इट, हमारा जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो लिटरली मतलब एक ग्रेन ऑफ राइस जितना उसका डायमीटर होता है. एक छोटा सा ग्रेन ऑफ राइस जो होता है उतना उसका डायमीटर होता है. लेंथ होता है 4 to 5 इंचेस एंड उनका जो डायमीटर होता है 0.2 to 0.4
इंचेस का होता है। तो इतना माइनर, इतना माइन्यूट, इतना छोटा सा, इतना नैरो चीज है, ठीक है। अब अगर उसमें लेट्स से फॉर एनी रीजन, उसके भी रीजंस होते हैं, बट किसी भी रीजन की वजह से अगर उसमें कहीं भी कोई एक ब्लॉकेज आ गया ट्यूब के अंदर, तो इट्स सो इजी टू गेट ब्लॉक्ड सबसे पहले तो, है ना, क्योंकि कोई इतनी नैरो चीज है तो उसमें थोड़ा सा भी, इतना सा भी कुछ होगा तो ब्लॉक हो जाएगा, या फिर हाफ ब्लॉकेज, है ना, या फिर ट्यूब के अंदर की जो लाइनिंग होती है अगर उसमें थोड़ा भी डैमेज है, या उसमें थोड़ा भी अगर इरिटेशन है, कुछ भी अगर कोई भी रीजन की वजह से इशू है, तो हो सकता है कि जो एग फर्टिलाइज होके बेचारा जा रहा है धीरे 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 धीरे, वो बीच में कहीं अटक जाए, बीच में कहीं वो चिपक जाए। सो दैट इज वाई ectopic pregnancies generally occur. Also, a fertilized egg is like a single grain of sand. It is like 0.1 mm का उसका size होता है fertilized egg का. In what circumstances does it occur? Like किन लोगों में ये होता है, क्या एक टाइप है जिसमें ये हो सकता है? So yes, the reasons for ectopic pregnancy can be PCOS women या फिर women with hormonal imbalance are prone to ectopic pregnancy more than somebody who doesn't have PCOS और thyroid और endometriosis, क्योंकि उनके हार्मोन सही रहते हैं, सब कुछ सही रहता है, पीरियड्स रेगुलर रहते हैं, हार्मोन सही रहते हैं, जो हमारा LH हार्मोन होता है या हमारा FSH होता है, वो सब जिनका सही होता है उनमें कम चांसेस है, क्योंकि उनका बॉडी सही एक्ट कर रहा है, आराम से बेचारा एक ट्रैवल कर रहा है, जाके इम्प्लांट कर रहा है, बट जो हम लोग होते हैं PCOS वाले, हमारे केस में बेचारा एग पहले तो फर्टिलाइज हो रहे थे मुश्किल से, उसके बाद बेचारा कष्ट काट काट के बढ़ रहा है, एंड बीच में उसको कोई ब्लॉकेज मिल जाता है एंड जस्ट गेट स्टक देयर. सो दैट इज हाउ ectopic happens. These are the reasons why ectopic pregnancy in certain women occur. Now ectopic pregnancy can occur because of reasons like blocked fallopian tubes, like I mentioned, damaged fallopian tubes, उसके बाद hormonal imbalances, उसके बाद जो assistive reproduction system हम यूज करते हैं टेक्नोलॉजी लाइक IUI एंड वो सब मेडिसिन जो होते हैं, तो उन सब रीजंस में ये चांसेस बढ़ जाते हैं. तो वन क्वेश्चन दैट आई गॉट आस्क्ड अ लॉट इज हाउ डू आई नो दैट इट्स एन ectopic pregnancy. जनरली जब हमारा HPT जो होम प्रेगनेंसी टेस्ट होता है या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है UPT और HPT, अगर हमारा पॉजिटिव आया है तो द डॉक्टर आस्क्स अस टू गेट बीटा HCG टेस्ट डन टू सी द एग्जैक्ट लेवल्स ऑफ बीटा HCG दैट इज इन आवर सिस्टम, सो दैट वी कैन नो इफ इट्स प्रेगनेंसी और नॉट. तो अगर बीटा HCG 25 MIU पर ml के ऊपर होता है, मतलब ये पॉजिटिव प्रेगनेंसी मानी जाती है. बट अगर वो 25 के नीचे है या उसके अराउंड है तो थोड़ा सा ना फिशी होता है, थोड़ा ग्रे एरिया माना जाता है. मेरा जो सीन था, एवरीवेयर जहां भी मैं यूट्यूब पे गई, एवरीवेयर दे सेड कि इफ योर बीटाज आर डबलिंग इट मींस इट्स अ हेल्दी प्रेगनेंसी, ठीक है. So when I got my first beta HCG done, this was my level. It was 23.40. तो 25 से नीचे था. So it was a bit in the gray zone. इसलिए डॉक्टर आस्क्ड मी टू गेट अ सेकेंड बीटा HCG डन 2 days later. तो 28 अक्टूबर का ये रिपोर्ट था 2020 में. फिर नेक्स्ट टेस्ट मैंने करवाया 30 अक्टूबर 2020, जिसमें मेरा लेवल डबल होके आया था, विच वॉज 77.90. इवन दो द लेवल्स वर डाउन बट इट हैड डबल्ड, सो दिस वॉज अ गुड साइन. उसके 2 दिन बाद जो रिपोर्ट आया 1 नवंबर को हमने करवाया था, तो उसका रिपोर्ट आया था 197.50. तो बीटा HCG फिर से डबल हुआ था, इवन तो नंबर लो था पर बीटा डबल हो रहा था. सो हियर आई हैव कंसोलिडेटेड ऑल ऑफ माय बीटा HCG टेस्ट्स. उसके बाद 6 नवंबर को मेरा बीटा HCG टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरा जो लेवल आया था वो 514.40 आया था. तो इसमें लेवल ये बहुत लो आया था क्योंकि मैंने टेस्ट ऑलमोस्ट 4 to 5 days बाद करवाया था, तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर. एंड ये जो 514 आया था, उसके नेक्स्ट डे ही मुझे स्पॉटिंग हुई थी. तो द डॉक्टर आस्क्ड मी टू विजिट देम. मैं गई उनके पास एंड देन मेरा इंटरनल स्कैन हुआ था. तो इतने लो बीटाज में तो वैसे भी आपको सैक नहीं दिखता है, बट मेरा सैक तो ऑब्वियसली नहीं था, बट स्पॉटिंग हुई थी एंड बीटा HCG लेवल्स वर वेरी लो. फिर डॉक्टर ने मुझे, डॉक्टर दुग्गल इन दिल्ली, उनके पास रेकमेंड किया था, रेडियोलॉजिस्ट के पास. ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड अ वेरी गुड सीनियर डॉक्टर. तो उन्होंने इंटरनली चेक करके फिर ही कुड आइडेंटिफाई अ बिट ऑफ अ बल्ज इन द फैलोपियन ट्यूब.
तो वहाँ पे थोड़ा सा मतलब श्योर होता गया कि ये एक टॉपिक है। उसके बाद डॉक्टर वांटेड टू सी इफ़ इट्स एक्टोपिक डज इट रिजॉल्व ऑन इट्स ओन या फिर हमें मेडिकली ट्रीट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम रेगुलर बीटा एचसीजी टेस्ट करवा रहे थे एंड इंटरनल स्कैनिंग भी चल रही थी। तो 9 नवंबर को बीटा एचसीजी में मेरा जो रिपोर्ट आया था दैट वाज 6:33। उसके बाद 2 दिन बाद फिर से हमने 12 तारीख को करवाया था, तो आया था 720.6। तो यहाँ तक तो श्योर हो गया था कि एक टॉपिक है, क्योंकि बीटाज वर नॉट डबलिंग एट ऑल एंड सेकेंडली बहुत ही इराटिक वे में बढ़ रहे थे। 14 नवंबर को दिवाली थी, तो डॉक्टर ने 15 को एडमिट होने के लिए बोला था हॉस्पिटल में। सो या now coming to the next question that I got asked a lot, that what were my symptoms during ectopic pregnancy. I could feel these things in my body. So जब मैंने मेरा यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट मेरा पॉजिटिव भी नहीं आया था, ठीक है, उससे पहले ही लाइक उससे 10 डेज पहले या 8 डेज मतलब 4 to 5 डेज पहले से आई हैड immense burning in my chest area, immense burning, like as if किसी ने रेड मिर्ची पाउडर डाल दिया मेरे ऊपर. It was so bad, like it was on fire. I don't know why. It was so painful. मतलब मेरा नेचुरल हम लोग ट्राई कर रहे थे. सिम्टम स्पॉटिंग तो मैं कर ही रही थी, तो मैंने देखा कि प्रेगनेंसी में क्या ऐसा बर्निंग होता है. तो कितनी जगह women said that yes they felt burning sensation. So I was like maybe वो, but mine was extreme level का, ठीक है. तो एक वो था मेरा बहुत बड़ा सिम्टम. उसके बाद माई नेक्स्ट सिम्टम दैट लेटर आई थॉट अबाउट इट वॉज हेयर फॉल. So I didn't know why my hair was falling so much. That was another very big symptom that I would like to say, जो मैंने स्पॉट किया था जब मुझे पता भी नहीं था कि आई एम प्रेग्नेंट या फिर एक टॉपिक है, जो भी है. मेरा हेयर फॉल इतना गंदा हो रहा था, मतलब लिटरली सो मच सो ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया. एंड मतलब मैं ऐसे गाड़ी में बैठ के ऐसे मैं ऐसी होती थी ना, मतलब ऐसे करके बस ऐसे हुई, पीछे इतना हेयर है, 15 20 25 50 हेयर. मतलब इट वॉज स्कैरी टू सी. माई हस्बैंड वॉज स्कैर्ड कि भाई हो क्या रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है. मतलब पिल्लो पे जैसे सो के उठे, लिटरली गुच्छे. इतना स्कैरी था वो, इतना स्कैरी था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. मतलब मैं बाल ऐसे करूँ ना तो पूरे इतने इतने बाल आ रहे थे मेरे बाहर. आई डेंट नो वाई एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि यार ऐसे क्यों हो रहा है. तो जब मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा कंसीव हो गया या कुछ भी, मतलब उससे पहले मैंने ये चीजें नोटिस करी थी. एक्सट्रीम बर्निंग इन द चेस्ट एरिया, उसके बाद एक्सट्रीम हेयर फॉल, यही दोनों थे मेरे मेन, और तो मेरा ऐसे कुछ नहीं था. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव एक्टोपिक प्रेगनेंसी. डॉक्टर ने बोल दिया कि एक टॉपिक है. सो व्हाट नाउ, व्हाट नेक्स्ट. सो सबसे पहले तो यू नीड टू गो सी द डॉक्टर ओनली. दे विल गाइड यू द बेस्ट. There are 2 to 3 ways how an ectopic pregnancy is treated. कि first is doctor will do repeated ultrasounds every alternate day. बीटा एचसीजी तो होता ही है, उसके साथ इंटरनल अल्ट्रासाउंड्स भी होंगे टू सी इफ द बल्ज इज इंक्रीजिंग या फिर क्या रप्चर के चांसेस बढ़ रहे हैं. अगर बीटा एचसीजी बढ़ रहा है, अपने आप कम नहीं हो रहा. कितनी बार अपने आप रिजॉल्व हो जाती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी. इट करेक्ट्स इटसेल्फ. सो बेसिकली बॉडी डज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ द एग embryo inside the tube and eventually वो अपने आप die down हो जाता है and then it passes through the next period. So that is like self method by which an ectopic treats itself. अब अगर let's say वो चीज नहीं हुई और किसी का बीटा एचसीजी बढ़ रहा है, every time बढ़ रहा है, but it's not normal pregnancy also, but it's also increasing. So there are 2 ways to deal with it. The first is methotrexate का इंजेक्शन दिया जाता है, जो बेसिकली कैंसर के ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी में यूज होता है. तो बेसिकली मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, वो कोई भी अनवांटेड सेल्स हमारी बॉडी में उनको मार देता है. तो हमारा जो फर्टिलाइज्ड एग है वो भी एक अनवांटेड सेल है बॉडी में. इसलिए बोलते हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है उनकी इम्यूनिटी लो होती है, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है कि ये जो एक नया जीव आ गया हमारे अंदर वो अनवांटेड है, तो बॉडी ट्राइज टू किल इट. इट्स सो क्रेजी टू इवन थिंक दैट. इसलिए इम्यूनिटी अपने आप सप्रेस हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, सो दैट द एम्ब्रियो ग्रोज इनसाइड. ये सब हॉर्मोन्स करते हैं.
तो बेसिकली मेथोट्रेक्सेट क्या करता है, वो हमारी बॉडी में दिया जाता है ताकि जो अनवांटेड सेल है वो जहां भी है बॉडी में वो उसको मार दे। अब उसके ऑब्वियसली साइड इफेक्ट्स भी होते हैं मेथोट्रेक्सेट के। कीमोथेरेपी में आपने कितनी बार देखा हो कि हेयर फॉल होता है ना लोगों का, इसलिए दे कट देयर हेयर एंड ऑल, क्योंकि बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। पर मेरा तो यहाँ पे हेयर फॉल, डॉक्टर ने बोला था कि हो सकता है आपको मेथोट्रेक्सेट के बाद हेयर फॉल शुरू हो। मैंने डॉक्टर मेरा ऑलरेडी इतना हेयर फॉल हो रहा है और मेरा एक्चुअली मेथोट्रेक्सेट के बाद बिल्कुल नहीं हुआ, वो कम हो गया। बट वो जो 10-12 डेज थे ना व्हेन आई वाज एक्चुअली सिम्टम स्पॉटिंग फॉर प्रेगनेंसी, उस टाइम पे जो मेरा हेयर फॉल हुआ है भाई, आधे बाल हो गए थे मेरे, लिटरली आधे, पूरा यहाँ पे एक पैच आ गया था। अब एक मेथोट्रेक्सेट वाला हो गया, उसमें आपको इंजेक्शन देंगे आपके बॉडी के बीएमआई के हिसाब से कितना आपको उसमें मेडिसिन डालना है, वो डॉक्टर ही करते हैं। एंड उसके लिए हमें हॉस्पिटलाइज होना होता है, 2 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा, 2 से 3 दिन का। इट्स आई मीन द होल प्रोसेस इज एज इफ you are going to deliver a child. It's so heartbreaking, it's like it's the same thing, it's just that you're not bringing the baby home, but खर्चा उतना ही है, सारा प्रोसेस वैसा ही है, बार बार अल्ट्रासाउंड्स, उसके बाद प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन, प्रॉपर ट्रीटमेंट। Now, I got admitted to the hospital on 15th of November for treatment of ectopic pregnancy, and वो methotrexate का इंजेक्शन मुझे सेम डे मिला था, सिंगल डोज। एंड 15th को जो मेरा बीटा एच था लेवल, वो 854 था। तो 854 वाज द मैक्सिमम बीटा एच लेवल जो मेरा गया था बिफोर द ट्रीटमेंट ऑफ ectopic। एंड सेम डे मुझे मेथोट्रेक्सेट का इंजेक्शन दे दिया गया था। फिर जो नेक्स्ट डे ऑन 16th ऑफ नवंबर जो मेरा बीटा एचसीजी रिपोर्ट आया, दैट वाज 683। एंड एवरी डे बीटा एचसीजी चेक हो रहा था हॉस्पिटल में। आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर इन टोटल 4 days एंड एवरी डे चेक हो रहा था, एवरी डे कम हो रहा था। तो ऑन 19th ऑफ नवंबर आई गॉट डिस्चार्ज्ड व्हेन माय बीटा एचसीजी वाज 373 एंड द प्लान वाज कि एवरी 2 days पे बीटा एचसीजी करवाते रहना है। एंड ऑलमोस्ट एवरी डे मेरा इंटरनल स्कैनिंग हो रही थी, या एवरी सेकेंड डे, और टू चेक कि रप्चर के कोई चांसेस तो नहीं है, क्योंकि कितने मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन के बाद भी रप्चर हो जाता है लोगों। Yes, that is the second, how an ectopic pregnancy is treated. And the third is surgery. So let's say that एक fertilized egg है ट्यूब के अंदर जो कि ग्रो हो रहा है ना, कितनी बॉडीज हैं जो सपोर्ट कर देती हैं उसको, तो वो लेट्स से हर बार डबल हो रहा है, बड़ा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। अब ऑब्वियसली ट्यूब इतना थिन है, बेबी इतना बॉल साइज का बड़ा हो जाता है, एक वाटरमेलन साइज का ग्रोथ होता है यूट्रस के अंदर, और वो ट्यूब में ऑब्वियसली इट्स इम्पॉसिबल है ना। तो जब ऐसे थोड़ा थोड़ा भी इंक्रीज होने लगता है तो ट्यूब के लिए स्ट्रेच होने लगता है, ट्यूब इट्स टू बिग फॉर द ट्यूब। सो बेसिकली द ट्यूब opens up, the tube ruptures, है ना। एंड उसके साथ वो जो जैसे ट्यूब है रप्चर हो गया, और वहां पे जो टिश्यूज है बहुत एक्सट्रीम इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है उस केस में, एंड दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग फॉर विमेन। So that is why the last option is surgery. Medication से अगर manage नहीं हुआ तो फिर they will perform surgery wherein they cut the tube, that is the affected tube, and yes, they remove the whole tube, and then we are left with just one tube. So that is the surgery part. So these are the 3 ways how an ectopic pregnancy is treated. Okay, now the next question that I got was, my beta HCG is not doubling, is it ectopic pregnancy? तो ectopic में सबसे पहले आपका जो फर्स्ट बीटा आएगा वो लो आएगा एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल प्रेगनेंसी। नॉर्मल प्रेगनेंसी में जो अगर बीटा एचसीजी फर्स्ट जो भी बीटा एचसीजी होगा उससे बहुत कम होगा अगर एक्टॉपिक है तो। और डबल नहीं हो रहा तो क्या एक्टॉपिक है? यस, देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट इट माइट बी एक्टॉपिक, बट स्टिल डॉक्टर्स से कि यू शुड वेट एंड सी, क्योंकि हर बॉडी अलग है। कितनी बार होता है कि डबल नहीं हो रहा, फिर एक वीक के बाद अपने आप नॉर्मल हो जाता है, अपने आप डबल होने लगता है, आपको सैक दिख जाएगा यूट्रस में, सब कुछ नॉर्मल लगेगा। सो दैट इज ऑल्सो व्हाट हैपेंस। तो इसलिए इट्स नॉट 100% कि वो एक्टॉपिक ही है, बट यस देयर इज अ वेरी बिग चांस दैट इट माइट बी एक्टॉपिक। Okay, now the next question I got was, how long does it take for the ectopic pregnancy to resolve?
सो लेट्स से कोई भी मेथड से हम रिजॉल्व कर रहे हैं एक टॉपिक को, अल्टीमेटली वी वेट फॉर द बीटा HCG टू कम टू अ जीरो। तो अब अगर वो नेचुरली हो रहा है तब भी आपका बार बार बीटा HCG टेस्ट होगा, जिसमें डॉक्टर्स देखते रहेंगे कि अच्छा चलो लो हो रहा है, ठीक है। तो जब तक वो जीरो ना हो जाए तब तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ है, तब तक हमें वेट करना है। अगर हम कोई भी मेथड से कर रहे हैं, मेथोट्रेक्सेट से कर रहे हैं, तब भी सेम चीज है, बीटा HCG से ही जज होगा कि वो रिजॉल्व हुआ है कि नहीं। और सर्जरी कर दिया तब तो बात ही नहीं। तो हीलिंग में आपको टाइम लगता है टू गेट द पीरियड्स बैक टू नॉर्मल, एंड पूरा सिस्टम नॉर्मल होने के लिए टाइम लगता है, 2 to 3 months नॉर्मली लगता है। पूरा वेटिंग पीरियड देखूं तो इट विल बी 3 months कि आप वापस से बेबी के लिए ट्राई कर सको। हमारे बॉडी में मेथोट्रेक्सेट स्टेज फॉर 2 to 3 months। तो जब तक वो मेडिसिन है हमारी बॉडी में तब तक हम ट्राई नहीं कर सकते फॉर बेबी, उसके बाद ही हमें करना है। सो 3 months आप लेके चलो एक टॉपिक के बाद, अब 3 months के बाद ही ट्राई शुरू करोगे वापस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मेथोट्रेक्सेट के इंजेक्शन के बाद मेरा बीटा HCG कम हो रहा है, बट व्हाई इज इट राइजिंग अगेन? सो द बाउंस बैक, oh my god, the bounce back is such a scary thing. What happened with me, and I know it happens with other people also, कि जैसे मेथोट्रेक्सेट लिया इंजेक्शन टू रिजॉल्व द एक्टोपिक, एंड फिर हम चेक कर रहे हैं थ्रू बीटा HCG टेस्ट की बीटा HCG लो हो रहा है कि नहीं। तो हर टेस्ट में वो कम होते हुए हमें दिख रहा है, एकदम से एक टेस्ट में आ जाता है 3 से 4 बार के बाद कि वो बढ़ गया। Okay, so in my case, the day my methotrexate injection was given, my beta HCG was 854.80, फिर उसके नेक्स्ट डे हो गया 683 पे, उसके नेक्स्ट डे हो गया 565 पे, एंड उसके नेक्स्ट डे हो गया 474 पे, एंड द लास्ट वाज 373 जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया था। तो for 4 days I was hospitalized. Doctor was basically making sure that the beta HCG is lowering consistently, and it was. Now I was asked to get beta HCG test done every alternate day or every day to make sure कि हमारा beta HCG low जा रहा है। तो अराउंड day 7 ऑफ मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन मेरा बीटा HCG बाउंस बैक हुआ था टू 420। उससे लास्ट वाले में इट वाज 330, बट उसके नेक्स्ट में आ गया 420। तो ऑब्वियसली इट वाज एक्सट्रीमली फ्रीकी फॉर मी, एंड आई वाज लाइक ये क्या है। बट देन आई आस्क्ड माय नीज हु इज अ गायनेकोलॉजिस्ट दैट, एंड शी एक्सप्लेन टू मी दैट अगर ओवरऑल आपका 15% डाउन गया है फ्रॉम द डे मेथोट्रेक्सेट वाज गिवन, देन देयर इज नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। सो लेट्स से अगर किसी में 15% से कम डाउन गया है फ्रॉम द डे मेथोट्रेक्सेट वाज गिवन टिल day 7, तो उनको सेकेंड डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट दिया जाएगा। एंड किसी में 15% या उससे ज़्यादा डाउन गया है HCG लेवल, तो उनको सेकेंड डोज ऑफ मेथोट्रेक्सेट नहीं दिया जाता है। So that's what we need to look for. One of the questions I got was, how many shots of methotrexate did doctor give you? So thankful in my case, they gave me only 1, and it worked very well on me. My body responded to it, but every body is different, and how everybody responds to the medication is different. So doctors might give a second shot also. Okay, yes. Now this was a very good question. After how many days of methotrexate does the period start? मेरे साथ जो हुआ था, मेरा तो हॉस्पिटल में ही स्टार्ट हो गया था। I don't know if it was because of the medicine or because I was miscarrying naturally, I don't know, क्योंकि basically क्या हुआ है, that whole month, ठीक है, जब ectopic हो गया, जब एग फर्टिलाइज हो गया ट्यूब के अंदर, तब भी एंडोमेट्रियम तो यूट्रस में है ही ना। तो एवरी मंथ का जो पीरियड्स का साइकिल होता है कि एंडोमेट्रियम फॉर्म्स एंड देन द फर्टिलाइज्ड एग इज नॉट देयर, देन इट शेड्स इटसेल्फ, है ना। तो वो तो है ही, एंडोमेट्रियम तो है ही, एग वहां तक पहुंचा ही नहीं, तो एंडोमेट्रियम तो अपने आप को शेड करेगा ही ना। तो बेसिकली माय नेचुरल पीरियड्स हैपेंड इन हॉस्पिटल व्हेन आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्टोपिक, and that was one of the most painful periods I've ever experienced. मतलब इतना पेनफुल था, आई डोंट नो व्हाई इट वाज दैट पेनफुल। मुझे लगा नॉर्मल होना चाहिए ना, जैसे हर बार पेन होता है। It was extremely, maybe it was because of the hormones and सब upside down होगा body के अंदर hormonal, I don't know, it was so painful, and maybe that is what they say when you are miscarrying. Basically my endometrium was shedding, जो कि हर periods होता है, but then it was so painful, I can't tell you. It was an extremely painful menstrual cycle, and that happened with me in the hospital. So it doesn't matter, कभी भी हो सकता है।
आपको इंजेक्शन के एक दिन बाद भी हो सकता है, 2 दिन बाद भी हो सकता है, या सेम डे भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू वी गेट हॉस्पिटलाइज्ड फॉर एक्टोपिक ट्रीटमेंट? यस. अगर आपका मेडिकली ट्रीट हो रहा है या सर्जरी होनी है तो ऑब्वियसली हॉस्पिटलाइजेशन होगा. 2 to 3 days का हॉस्पिटलाइजेशन रहेगा. द एंटायर थिंग विल बी जस्ट एज इफ यू आर गोइंग देयर टू डिलीवर अ चाइल्ड. सो यस, खर्चा भी उतना ही है, 1 लाख तक का खर्चा भी है. कंसिडरिंग ऑल द अल्ट्रासाउंड्स दैट वी गेट एंड everything is so expensive, all the medications, the hospitalization, so 1 लाख तक का खर्चा है एक्टोपिक के ट्रीटमेंट में और पूरा जो प्रोसेस होता है उसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आई थिंक आई हैव कवर्ड दिस, बट डज बीटा HCG डबल इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी? आई लिंक द वीडियो ऑल्सो. एंड yes, in my case it did double in the starting 2 to 3 tests of beta HCG, and after that it stopped doubling. Okay, so what is tube rupture? So yes, the basically वो जो fertilized egg है जो ट्यूब के अंदर है वो वहां पे फंसा हुआ है और वो वहीं पे ग्रो करना स्टार्ट कर दिया उसने. तो अब वो अगर इतना बड़ा हो गया कि ट्यूब उसको नहीं ले पा रहा है तो ट्यूब विल ओपन अप, ट्यूब विल रप्चर एंड उसके साथ पूरा ब्लीडिंग हो जाता है अंदर एंड इट्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग. एज आई मेंशन, आई रिमेंबर मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, मेरा जब 11 था ना बीटा HCG, तब डॉक्टर ने मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट होता है उसके बाद ड्यूरिंग एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी कुछ भी हैवी एक्सरसाइज या ज्यादा मूवमेंट मत करो. आपको बेड रेस्ट पे ही रहना है, क्योंकि हो सकता है एक्सट्रीम मूवमेंट से आपका जो ट्यूब है वो रप्चर हो जाए और इंटरनल ब्लीडिंग हो जाए. इसलिए तो जब मेरा मेथोट्रेक्सेट का मेरा हो गया था ट्रीटमेंट, उसके बाद 2-3 दिन के बाद तो घर भेज दिया था डॉक्टर ने, पर डॉक्टर ने बोला था जब तक आपका बीटा HCG 0 ना हो जाए आपको बहुत नॉर्मल, बहुत ही शांति से रहना है, बहुत ही बेड रेस्ट पे ही रहना है, क्योंकि ज्यादा मूवमेंट हो सकता है रप्चर हो जाए. तो जब मेरा 11 था ना बीटा HCG, जब मेरा 11 था तब मैं डॉक्टर से मिलने गई थी. तो डॉक्टर को मैंने बोला, पर मैम अब तो 11 है, अब तो मतलब नहीं होगा ना रप्चर, अब क्या है, कोई टेंशन नहीं, अब तो हम लोग ये वॉक वगैरह में कर सकते हो. तो डॉक्टर ने बोला नो, इवन एट 2 या 3 बीटा जी आई हैव सीन तब भी ट्यूब का रप्चर होता है. तो ये मत सोचना कि इतना कम हो गया मतलब एक इतना छोटा हो गया कि अब तो उसमें कोई जान नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है. जब तक वो 0 ना हो जाए पूरा तब तक आपको शांति से बेड रेस्ट पे रहना है, बिल्कुल बेड रेस्ट ही मान के चलो. एंड डोंट टेक दिस सिचुएशन वेरी लाइटली, इट्स अ वेरी सीरियस सिचुएशन. सो जस्ट प्रे टू गॉड कि जान है तो जहान है भाई, जान बच गई, चलो ठीक है, आगे ट्राई कर लेंगे फॉर द बेबी. Okay, now one comment I have, it was asked 3 months back on my video, was, hi Aditi, I have an ectopic pregnancy. I had 2 injections now. I can see beta HCG goes down now. It's 219 from 780, but still in the right side I'm feeling pinching pain like current comes and goes. Is it happen to you also? Is it normal after the injection? Kindly reply, it will be very helpful. Yes, these things happen. You feel pain, you feel shooting pain inside, and पता है इतना डर लग जाता है ना कि यार रप्चर हो गया क्या, कोई प्रॉब्लम हो गई क्या. इट्स सो स्कैरी, बट या आई जस्ट से दैट बेड रेस्ट पे रहो, रिलैक्स्ड रहो. इस टाइम पे डॉक्टर ने मुझे ये भी बोला था कि ज्यादा हेल्दी नहीं खाना है इस टाइम पे आपको, क्योंकि हेल्दी खाने से ना सपोर्ट मिलता है फॉर द एग टू ग्रो, बट इस टाइम पे हमें उसको ग्रो नहीं करवाना है. तो हमें जंक खाना है, हमें गंदा खाना खाना है, हमें हेल्दी खाना नहीं खाना है इस टाइम पे. ठीक है कि ये चीज भी है. इट्स सो वियर्ड, बिल्कुल ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी डू व्हेन वी आर प्रेग्नेंट, वी हैव टू डू इन इसमें. एक कमेंट है, फर्स्ट बीटा HCG लेवल ऑफ माय वाइफ 49, आफ्टर 48 आवर्स 228, आफ्टर 48 आवर्स 341 एंड 50% इंक्रीज, बट अगेन इट डबल वैल्यू गॉन टू 650. इज इट अ साइन ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी? यस, जब भी इतना इराटिक होता है, जब आपका बीटा HCG इतना इराटिक है, इफ इट्स गोइंग अप एंड डाउन एंड 50% इंक्रीज, देन 100% इंक्रीज, देन अगेन 20% इंक्रीज, most probably it is ectopic pregnancy, but not 100%. कितनी बार नॉर्मल प्रेगनेंसीज भी स्टार्टिंग के फ्यू वीक्स में ऐसे डेवलप होती है, उसके बाद जाके वो प्रॉपरली इम्प्लांट होके प्रॉपरली सब कुछ होने लगता है. सो इट्स नॉट 100% एक्टोपिक. इस वजह से दिस टाइम डॉक्टर इज योर बेस्ट फ्रेंड. Always be with the best gynecologist, a very good experienced gynecologist, and this time your doctor is your best friend. One comment I have, hi, in my case the beta HCG was doubling initially, then it got stuck at 522, then reduced to 512 after 48 hours, but then it reached 588 again after 48 hours. Doctor said we can't see anything, scan below 100 HCG.
So how can I confirm it's ectopic or not? So like I said, go to the best radiologist, ask your doctor for a very good radiologist, experienced one, and they will internally scan. And to terminate a pregnancy, ectopic is also a pregnancy, and to terminate it, a doctor has to be 100% sure that it is ectopic. And ectopic pregnancy को पहले तो डायग्नोस करके उसको जज करना और कंफर्म करना ही बड़ा डिफिकल्ट है. इट्स लाइक सो डिस्गाइज्ड. एक्टॉपिक इज इतना डिस्गाइज्ड प्रेगनेंसी है ना कि उसको वो करना ही बड़ा मुश्किल है. तो इसलिए बेस्ट रेडियोलॉजिस्ट के पास जाओ, डॉक्टर से पूछ के, एंड वो आपको कंफर्म करेंगे. कितनी बार होता है कि स्कैन नहीं देख रहा 6 वीक में, 8th वीक में, पर बाद में सही हो जाता है. तो योर डॉक्टर इज योर बेस्ट फ्रेंड एट दिस टाइम. Next comment is, I got my methotrexate shot 2 months back and HCG is back to 0.9 and doctor told me to TTC after 3 months, but I'm really scared. I had ectopic in my left tube. Please help me. What measures should I take to reduce repeated ectopic? So I'll make a separate video on this comment. क्योंकि how my pregnancy went. So basically whatever tube is affected उसको हमें bypass करना है every time we are trying for a pregnancy. So let's say हम जाके अल्ट्रासाउंड करवा रहे हैं, जब हमारा पूरा ग्रोथ ऑफ एग्स एंड ये सब चल रहा है, तब अल्ट्रासाउंड में हमें पता चलता है कि किस साइड से इस बार एग ग्रो हो रहा है. तो अगर आपका अफेक्टेड साइड की ओवरी से अगर ग्रो हो रहा है तो उस मंथ आपको नहीं करना है ट्राई फॉर प्रेगनेंसी. एंड जिस मंथ, ऑब्वियसली एवरी मंथ क्या होता है, एक मतलब दोनों ओवरी में कभी एग्स डेवलप नहीं होते, आइडियली एक ही एग डेवलप होता है. तो इट्स ईदर लेफ्ट. If this month it's left, next month it will be right. It's consecutive, मतलब 1 by 1 every month. तो अगर इस बार लेफ्ट में तो नेक्स्ट टाइम राइट में होगा, नेक्स्ट टाइम राइट में तो इस बार लेफ्ट में होगा, ऐसे होता है. जिस मंथ भी आपका अफेक्टेड एक्टोपिक ट्यूब साइड से एग ग्रो हो रहा है उस मंथ हमें नहीं ट्राई करना है, और जिस मंथ से भी नॉर्मल वाले साइड हो रहा है उस मंथ ही हमें ट्राई करना है. तो बेसिकली इसमें तो पहले हम मिस आउट करते हैं इतने सारे मंथ्स, लाइक 12 मंथ्स में 6 मंथ्स तो हमारा मिस ही हो रहा है, ठीक है, इस ट्रायल में. तो ये चीज है. मेरा तो डॉक्टर ने मेरे साथ यही किया था, आपको उस मंथ को बाईपास करना है. टू अवॉइड एक्टोपिक अगेन वी नीड टू बाईपास द मंथ जब भी हमारा अफेक्टेड साइड ऑफ द ट्यूब का ओवरी का एग ग्रो हो रहा है. तो उसमें कोई डरने की बात नहीं रह जाती, क्योंकि दूसरा साइड तो नॉर्मल है ना, तो उसमें तो ठीक है. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बीटा HCG नेगेटिव हो सकता है? नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकता. अगर नेगेटिव है मतलब लेट्रोज या क्लोमेट जो होता है, जो हम लेते हैं अपने एग को ग्रो करवाने के लिए, और उसके बाद जो आपने ओवुलेशन का शॉट लिया है, तो उसमें उसका जो थोड़ा रेजिडुअल होता है दवाई, अगर आपने बाद में टेस्ट करवाया है चेक करने के लिए प्रेग्नेंट है कि नहीं हम, तो वो जो रेजिडुअल HCG होता है वो उसकी वजह से आपको 0.1 0.2 ऐसे दिखाएगा, 0.5 0.6, बट वो एक्चुअली इट्स नॉट दैट. अगर अगर एक्टोपिक है तो उसमें आपको नंबर दिखाएगा, आप चाहे लो हो पर प्रॉपर नंबर होगा, वो नेगेटिव नहीं हो सकता. मेरे साथ भी हो रखा है. तो मेरा IUI ट्रीटमेंट हुआ था सितंबर साइकिल में 2020 में ही, एंड मेरा जो उसमें रिजल्ट आया था 2.9 आया था. तो मुझे लगा कि इतना भी क्यों आया है, तो डॉक्टर ने बोला था कि 10 के नीचे रहते तो प्रेगनेंसी नहीं होती है. बट स्टिल अपनी शांति के लिए मैंने फिर से 2 दिन बाद या नेक्स्ट डे ही टेस्ट करवा लिया था टू सी कि डबल हुआ है कि नहीं. तो ऑब्वियसली डबल नहीं हुआ था, एंड उसका आया था 2.7. तो फिर मुझे पता चला कि ओके, जो हमारा ओवुलेशन का शॉट होता है वो भी एक्चुअली बीटा HCG ही होता है, एंड वो रेसिडुअल जो होता है वो हमारे सिस्टम में रह जाता है, जिसकी वजह से इतना भी नंबर आया है. बट अगर वो बिलो 10 है तो वो प्रेगनेंसी नहीं है, चाहे वो एक्टोपिक में भी 10 के ऊपर आता है तभी वो थोड़ा डाउटफुल भी होता है. एंड कोई भी नंबर आया है आप दूसरी बार टेस्ट करवा लो टू सी अगर डबल हो रहा है कि नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम एक्टोपिक प्रेगनेंसी है बट अगर इंजेक्शन डाउन हो गया, 21 दिन हो गए, 33 आया है बीटा, बट अभी भी लेफ्ट ओवरी में माइल्ड पेन है, फिर से डॉक्टर को दिखाऊं या पीरियड आने तक का वेट करूं? यस, पेन होता है, बट हमें जनरली भी लेट्स से पेन होता होगा, कभी कभी कहीं के हो गया, पर हम तब उतना ध्यान नहीं देते. बट एज अभी हमारा ध्यान पूरा वही होता है कि यार मतलब ये एक्टोपिक, एंड देन पूरा ट्रीटमेंट हुआ है, हम हर एक पेन को बहुत ज्यादा एनालाइज भी करते हैं. अगर ज्यादा पेन हो रहा है तो इट्स हाईली रिकमेंडेड टू गो सी योर डॉक्टर, एंड मे बी डॉक्टर एक इंटरनल अल्ट्रासाउंड करेंगे एंड देन दे विल सी कि सब कुछ ठीक है ना. क्योंकि कितनी बार हो सकता है कम, जब बीटा HCG बहुत ही, जैसे मैंने बताया 2 3 4 में भी रप्चर्स देखे डॉक्टर ने, तो कभी भी कुछ भी आपको फील हो, पेन फील हो या ब्लीडिंग हो कुछ भी, तो यू शुड गो सी द डॉक्टर.
Next question is, did you experience implantation bleeding or spotting after test becomes positive? हाँ, मतलब मुझे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं फील हुई थी जब मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया था और जब मेरा बीटा एचसीजी भी हो गया था। उसके 2-3 के बाद जब मेरा मतलब फर्स्ट बीटा एचसीजी जब लो दिखाया ना, उसके नेक्स्ट डे ही मेरा थोड़ा सा स्पॉटिंग हुआ था, तब मैं गई थी हॉस्पिटल और फिर मेरा टेस्ट किया था उन्होंने इंटरनल, तो उनको कुछ पता नहीं चला, फिर उन्होंने मुझे रेकमेंड किया ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू फेस इरेगुलर पीरियड्स आफ्टर मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन? तो देखो वैसे पीसीओएस में तो एनीवे पीरियड्स इरेगुलर होते हैं ना, कभी आया कभी नहीं आया, तो हमें तो इतना पता भी नहीं चलता कि वो इंजेक्शन की वजह से या वैसे ही है। बट नो, आई डिडंट। मतलब पहले तो मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन वाले टॉपिक वाले मंथ के बाद 2-3 महीने तक पीरियड्स आए ही नहीं, और फिर जब आना शुरू हुआ तो फिर इट वॉज नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माई बीटा एचसीजी लेवल्स आर 0.100 MIU per ml। तो ये जो है ये एक टॉपिक नहीं है, ये वही हमने जो एचसीजी शॉर्ट लिया होता है उसका रेसिडुअल होता है। माई नंबर इज 2.39, कुड इट बी एक टॉपिक? मोस्ट प्रॉब्ली नो, क्योंकि वही है, हमने जो एचसीजी शॉर्ट जो लिया है ना, तो उसका जो रेसिडुअल रहता है हमारी बॉडी में तो वो दिखाता है ये। अब आपको लेट्स से 2.39 भी आया है, अब आपको क्या करना है, आपको 2 दिन के बाद उसको टेस्ट को रिपीट करना है बीटा एचसीजी को, और देखना है कि क्या आपका बीटा एचसीजी डबल हुआ है कि नहीं। द की इज बीटा एचसीजी डबलिंग। नॉर्मल प्रेगनेंसी में बीटा एचसीजी डबल होगा, एक टॉपिक में नहीं होगा। पर अगर हो रहा है, पर अगर आपका बीटा एचसीजी लो है, तो आपको पूरा देखना है 3-4-5-6 टेस्ट तक कि बीटा एचसीजी डबल हो ही रहा है क्या। तो ये सब आपके डॉक्टर के साथ आपको करना है। ओके गाइज, सो दीज आर मेनली द मेजर क्वेश्चंस। बाकी तो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हुए हैं। So yeah, these were the major comments under my video regarding ectopic pregnancy. So that is what I wanted to address in this video. I hope कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। I hope कि मैंने वो क्वेश्चन आंसर किया हो जो आप जिसका जवाब ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक चीज है। ectopic is a very specific thing, सबका केस अलग है, and there are so many doubts going into it, you know. I was obsessed. मैंने इतने ब्लॉग्स, मैंने कौन कौन से यूट्यूबर्स, फॉरेन वॉरेन सब हर जगह के सबका देख लिया था, उनको कांटेक्ट किया था, मैंने क्या नहीं किया था। आई नो हाउ बैड इट इज। सो आई जस्ट वांट टू से दैट जस्ट बी काम, बी योर बेस्ट, relax, good things are coming your way. I have my baby girl, and yes, it happened naturally with me. If you haven't watched the video, I'll link it right above. So it will happen for you too. Don't worry, miracles do happen, and all we need to do is we need to be positive and we need to be grateful for the things we have, and not be upset about the things we don't. And that is the key, I frankly feel. Let's just be positive, stay calm, and good things will come your way. I'll soon see you soon with another video. And आपको और भी कोई doubts हो अगर एक topic pregnancy को लेके, comment in this video so that I can answer it for you guys. ठीक है, because I want all the questions regarding ectopic to be answered. So yes, that was all for this video. I hope it was helpful, sending baby dust your way. And also, if you found this video helpful at all, please subscribe to the channel so that we can grow our community of TTC mamas and help each other out. And I would love this channel to be a space where we all can communicate with each other and एक दूसरे से बात करके हल्का फील कर सकें, अच्छा फील कर सकें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके हमें बेटर फील हो। तो आई वांट दिस टू बी दैट स्पेस, बिकॉज आई वाज लुकिंग फॉर सच अ स्पेस so bad when I was going through it, so I know how it is. So you guys watching also, if you want to talk to each other, you can in the comments, and you can just interact with each other. I'll see you in my next one. Till then, bye.